Good evening, students. This video is for class 12th. Subject is economics, and the topic is elasticity of demand. In this video, I'll be discussing factors affecting price elasticity of demand. So, without wasting time, let's start. First factor is availability of substitutes. As you already know, substitutes are those when the same need, same demand, same want is satisfied, can be satisfied by two or more products, then such products are said to be substitutes of each other. When a commodity has more number of substitutes or close substitutes, such a product has elastic demand. Why? Because if the manufacturer, the seller will increase the price of such a commodity, the consumer will find such a commodity costly and substitutes are available in the market. So the consumer will switch over to the substitutes, which he will find cheaper in comparison to the commodity in question. Okay, so the seller must be very cautious while increasing the price of such a product. If he knows that his product is having close substitutes and many substitutes, so he should be very careful while increasing the price of his product, because he should be prepared that what will happen, there will be a fall in the number of consumers because consumers will switch over to the substitutes. I hope it's clear. क्या मतलब है इसका? जब कमोडिटी हमें पता है, मान लो हम एक कंपनी है, एक प्रोडक्ट ऐसा है हमारा जिसके सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में हैं, बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स हैं और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो ऐसे में अगर हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएंगे तो काफ़ी कंज्यूमर्स को हमारा प्रोडक्ट महंगा लगेगा, तो वो हमारा प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे और वो कहाँ चले जाएंगे, वो सब्स्टिट्यूट्स खरीदने लग जाएंगे, तो हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो काफ़ी गिर जाएगी, उस पर काफ़ी असर पड़ेगा. तो ये केस क्या हो गया? अगर काफ़ी असर पड़ेगा प्राइस चेंज का, ये इलास्टिक डिमांड है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, अ कमोडिटी विद अ फ्यू एंड पुअर सब्स्टिट्यूट्स हैज एन इलास्टिक डिमांड. क्या मतलब है इसका? अगर एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बहुत कम सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट में और वो सब्स्टिट्यूट्स पुअर हैं, पुअर मतलब उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है या वो इनकन्वीनियंट है, तो कंज्यूमर फिर प्रेफर करेगा यही प्रोडक्ट लेने का. वो पुअर सब्स्टिट्यूट क्यों लेगा? जिससे उसे डिफिकल्टी हो रही है. ठीक है ना. तो ऐसे प्रोडक्ट्स की जिनके कम सब्स्टिट्यूट है मार्केट में और सब्स्टिट्यूट जो है वो पुअर है, मतलब वो इनकन्वीनियंट टाइप के हैं, डिफिकल्ट कंज्यूमर को लगता है यूज करना, तो बेटा ऐसे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है. क्या मतलब है? अगर ऐसे प्रोडक्ट का प्राइस सेलर बढ़ाएगा भी तो भी डिमांड ज्यादा गिरेगी नहीं, डिमांड ज्यादा कम नहीं होगी, क्योंकि कंज्यूमर्स इजीली स्विच ओवर नहीं करेंगे सब्स्टिट्यूट्स पे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स मैंने कहा पुअर है. पुअर सब्स्टिट्यूट्स वो होते हैं जो यूज करने में थोड़ा डिफिकल्टी, थोड़ी मुश्किल, उतना कन्वीनियंट नहीं होते, तो कंज्यूमर यही प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगा. तो इनलास्टिक डिमांड का आप मतलब ये समझ लो कि अगर प्राइस हमने बढ़ा भी दिया तो ज्यादा डिमांड कम नहीं होगी, कंज्यूमर्स हमारा ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये मतलब है इसका. So let's come to the second point, nature of the commodity. Demand for necessities is inelastic. Necessities are essential goods. So even if the price of essential goods like maybe cooking oil and all rises, what will happen? People will continue to buy the basic necessities. They can't manage without these essential commodities. तो कहने का मतलब necessities का अगर प्राइस बढ़ेगा भी, उसकी डिमांड पे इतना असर, डिमांड नहीं उतना गिरेगी. I hope it's clear. Even if the price of necessities increases a lot, the demand will not fall much because these are essential things for the people and they will continue to buy. On the other hand, luxuries and comforts, children, luxuries are generally bought by the rich people, but middle class also people, they do buy luxuries by saving money and maybe by getting it financed. And comforts are those goods which make a life comfortable and enjoyable. So middle class people are very conscious about their budget while spending money. So the demand for luxuries and comforts, it has been seen as elastic. Means if the price, luxuries, just point to be noted, I'm not considering not in context of rich people. If the price of luxuries are already costly, even if some luxurious item becomes more costly, that won't make any difference to a rich person. He'll continue to buy. In my context, और इन इकोनॉमिक्स वी टॉक अबाउट अ रैशनल कंज्यूमर, अ मिडिल क्लास पर्सन. ओके, तो अब मिडिल क्लास आदमी की बात कर रहे हैं, तो अगर लग्जरीज और कंफर्ट्स का प्राइस और बढ़ गया
तो देखा गया है कि उसकी डिमांड एकदम कम हो जाएगी, क्योंकि मिडिल क्लास कंज्यूमर जो है, काफी मिडिल क्लास कंज्यूमर उसको तब नहीं खरीदेगा, तो डिमांड फॉल कर जाएगी। तो प्राइस बढ़ा और डिमांड पे ज्यादा असर पड़ रहा है, तो ऐसी डिमांड को क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड है। थर्ड पॉइंट है प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंट। द स्मॉलर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, द स्मॉलर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब है? How much, if you are spending a very small part of your income on a commodity, then the demand, then even if the price of such a commodity rises, you will not stop buying that. I hope it's clear. Example, newspaper. अखबार है, जो लोग अपनी कमाई का बहुत ही मामूली सा हिस्सा अखबार में खर्च करते हैं, तो अखबार का दाम अगर बढ़ भी गया तो लोग अखबार लेना बंद नहीं करेंगे। ये क्या दर्शाता है? कि अखबार की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है। कहने का मतलब, अगर अपनी आय, इनकम का बहुत ही कम हिस्सा आप खर्च कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट पे, तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक होती है। ऑन द अदर हैंड, इफ अ मेजर पार्ट ऑफ योर इनकम यू आर स्पेंडिंग ऑन अ प्रोडक्ट, सच अ प्रोडक्ट विल हैव इलास्टिक डिमांड। अगर एक व्यक्ति अपने कमाई का, अपनी आय का, इनकम का मेजर पार्ट किसी प्रोडक्ट पे खर्च कर रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड देखा गया इलास्टिक है। क्या मायना है इस बात का? कि ऐसे प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ेगा तो लोगों का बजट अफेक्ट होगा ना, क्योंकि मेजर पार्ट उनका कमाई का उस पर जा रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को कम मात्रा में खरीदेंगे। तो दैट मीन्स इफ अ प्रोडक्ट, if a consumer is spending a major part, a big part of his income on a product, such a product will have elastic demand. It will get affected by the small price change. I hope that is clear. Number fourth, number of uses of a commodity. There are some commodities which have multiple uses. Okay, uh, so a product, such a product, when it is cheap, what will happen? People will, when the price falls, people will buy it in large quantity and use it for various purposes. But when the price of such a product rises, they will curtail the quantity purchased. They will buy in small quantity and use it only for the main purpose. Example, tomatoes. When tomatoes are cheap, a household will buy large quantity of tomatoes. With some tomatoes they will use for cooking, some tomatoes they will use for cooking. With some tomatoes they will make tomato puree. With some tomatoes they will make sauce. But when tomatoes become costly, a household may buy only 1 kg of tomatoes so as to use in the cooking. I hope you are understanding me. Okay, so same thing for mangoes. When mangoes are very very costly, a household will buy only 1 kg of mangoes. When the price of mangoes falls down, mangoes become cheap, the same household will buy larger quantity of mangoes, some mangoes to eat, with some mangoes to make mango shake, and uh, remaining mangoes to make maybe custard or something else. I hope my example is clear. So the commodity which has multiple uses has elastic demand, means it gets affected by a price change. Fifth, time factor. टाइम फैक्टर में विल टॉक अबाउट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। देखो बेटा, शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, लोग अपना चॉइस एकदम, अपना टेस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते, तो जिस प्रोडक्ट की उनको आदत है वो वही खरीदेंगे, इवन इफ अगर उसका प्राइस बढ़ गया। इन शॉर्ट पीरियड, इन शॉर्ट रन, कंज्यूमर्स कैन नॉट चेंज देयर चॉइस सो फास्ट, so they will continue to buy the same product of which they have, for which they are habitual of, you know even if the price rises. So demand becomes inelastic in short run. दूसरी चीज, शॉर्ट रन में किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं होते। ठीक है, जब शुरू शुरू में हेयर कलर आया तो खाली लॉरियल का हेयर कलर आया था, आज से मे बी 20 years बैक। अब तो इतने इतने वैरायटी, इतने ब्रांड्स आ गए हेयर कलर के। ठीक है, तो उस समय खाली लॉरियल था, तो लॉरियल वो, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ, शुरू शुरू में हेयर कलर आया था, लॉरियल ही था, तो इवन इफ उसका प्राइस बढ़ा तो लोग लॉरियल ही खरीदते थे, क्योंकि और कोई चॉइस ही नहीं थी। लेकिन लॉन्ग रन में अब देखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सो मेनी ब्रांड्स ऑफ हेयर कलर आर देयर, सो कंज्यूमर्स फाइंडिंग लॉरियल कॉस्टली, ही विल स्विच ओवर टू cheaper brands, other brands. I hope you understanding. तो लॉन्ग रन में क्या होता है, प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स आ जाते हैं, लोग अपनी चॉइस और टेस्ट को चेंज कर पाते हैं। एक तो ये पॉइंट है बेटा। अब जस्ट अ मोमेंट।
Okay, so in long run, the demand of a product is elastic because in the long run, substitutes of a product can be developed and also consumers are capable of changing their taste and preferences over a long period of time. In short run, the demand is inelastic. In long run, demand is elastic. Next point. Possibility of postponement of consumption. अगर आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड को परचेज को पोस्टपोन कर सकते हैं तो हम इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई, इलास्टिक हो गई. फॉर एग्जांपल फैशनेबल क्लोथ्स. मान लो मैंने डेनिम की लिवाइस की डेनिम की जैकेट लेनी है, मुझे अच्छी लगती है, स्मार्ट लगती है, मैं गया, उसने कहा अभी तो 5-6,000 लेट्स से 6,000 की है, अब मुझे कॉस्टली लग रही है, तो सेल्समैन लेट्स से जानता है मेरे को, तो कहता है भैया अभी मत लो आप, नेक्स्ट मंथ सेल लगेगी, डिस्काउंट सेल 40% या 50%, तब ले लेना. तो व्हाट विल आई डू, विल आई बाय राइट नाउ? नो, आई विल पोस्टपोन इट. अभी प्राइस ज्यादा है तो मैं नहीं खरीदूंगा, मेरी तरह और भी बहुत मिडिल क्लास लोग नहीं खरीदेंगे. और जब सेल लगेगी तो ज्यादा, जब सेल लगेगी यानी कि प्राइस कम होगा तो सेल बढ़ जाएगी लिवाइस जीन्स की. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. अ प्रोडक्ट whose purchase you can postpone, the demand for such a product is elastic. When the product is at a high price, people will buy less, very less people will buy. They will wait for a time when the price will fall. And then what will happen when the price will fall? Even if it falls a bit, you will see many consumers coming to the showroom and buying. I hope this is clear. On the other hand, a product whose purchase you cannot postpone, you have to buy that even if at a high price. Example, स्कूल यूनिफॉर्म. कपड़ों की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने कैजुअल फैशनेबल क्लोथ्स की बात करी, अब स्कूल यूनिफॉर्म ले लो. मान लो बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म है तो वो आप पोस्टपोन थोड़ी करोगे. मान लो स्कूल खुलने वाला है, स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए बच्चे को, तो चाहिए, पेरेंट्स लेंगे, चाहे इवन अगर उन्हें महंगा लगे, वो वेट थोड़ी करेंगे सेल की, सेल होती भी नहीं है उसमें. स्कूल बुक्स हैं तो किताबों की भी, स्कूल की किताबें हैं तो खरीदनी है. तो यानी कि अगर प्राइस बढ़ भी गया तो बुक्स तो खरीदनी है ना, तो पेरेंट्स विल कंटिन्यू टू बाय स्कूल यूनिफॉर्म, बुक्स. तो यू कैन नॉट पोस्टपोन, मीन्स द डिमांड इज inelastic. So what do we conclude? That a product whose purchase you can postpone, the demand is elastic for such a product. On the other hand, a product whose purchase you cannot postpone, then the demand for such a product is inelastic. Seventh is price range. Very highly priced goods and very low priced goods have inelastic demand. ये देखा गया है कि बहुत ही महंगे गुड्स और सस्ते गुड्स जो हैं, बहुत ही सस्ते गुड्स, इनकी इनलास्टिक डिमांड है. बेटा ऐसा क्यों? हाईली प्राइस्ड गुड्स तो रिच लोग खरीदते हैं, तो ऑलरेडी जो चीज महंगी है उसका प्राइस अगर और भी बढ़ गया तो एक अमीर आदमी के बजट पे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा, वो तो खरीदेगा उसको. तो डिमांड यानी कि प्राइस चेंज का फर्क उसकी डिमांड पे पड़ नहीं रहा अमीर आदमी के, तो इनलास्टिक डिमांड है. उसी तरह से लो प्राइस गुड्स का मतलब यही नहीं है कि गरीब लोग खरीदते हैं. लो प्राइस गुड माचिस भी हो गई, ठीक है. तो लो प्राइस गुड्स कुछ एसेंशियल इनएक्सपेंसिव नेसेसरीज भी होती हैं, सॉल्ट वगैरह भी हम ले सकते हैं. तो लेट्स से सॉल्ट हो गया, माचिस हो गई, तो ये ऑलरेडी सस्ते हैं. अगर इनका प्राइस थोड़ा बढ़ भी गया तो जितनी माचिस मुझे घर में चाहिए, जितना नमक मुझे चाहिए, मैं उतना ही तो लूंगा. डिमांड इनइलास्टिक है. लेकिन वो गुड जिनका मॉडरेट प्राइसेस है, ठीक है, जो वो गुड जिनके मॉडरेट प्राइस मतलब मिडिल रेंज में प्राइसेस है, देखा गया उनकी डिमांड इलास्टिक होती है. क्योंकि मिडिल क्लास आदमी वो एनालाइज कर रहा है कि अभी प्राइस ये है, बजट में है, तो मैं ले रहा हूँ. अब महंगा हो गया तो वो फिर वो नहीं. अब फॉर एग्जाम्पल बाग बकरी चाय है, एक तरफ रेड लेबल है. बाग बकरी चाय का प्राइस मान लो बढ़ गया, वो काफी महंगी लग रही है मुझे, तो एज कम्पेयर टू रेड लेबल, तो मैं रेड लेबल पे आ जाऊंगा, रेड लेबल टी. ठीक है. Habits of the consumers. If consumers are habitual of using some products like coffee or cigarette, even if such products become costly, consumer will not stop buying these products. अगर किसी कंज्यूमर को हैबिट है मान लो कॉफी की या सिगरेट की, अगर सिगरेट का दाम बढ़ जाता है या कॉफी का दाम बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड में फर्क नहीं पड़ेगा. डिमांड इनइलास्टिक है, विल कंटिन्यू टू बाय. लास्ट पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर. रिच कंज्यूमर्स हैव इनइलास्टिक डिमांड, प्राइस का असर उन पे पड़ता ही नहीं है. Middle class people and poor people have elastic demand because a rise in price of a product affects their budget. तो मिडिल क्लास लोग और पुअर लोग जो होते हैं वो बड़ा सोच समझ के खर्च करते हैं. तो जो प्रोडक्ट्स, आई होप इट्स क्लियर, are targeted at middle class people and poor people, they have elastic demand.